Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope your studies are going well. You all have started completing your work and you all are attending your regular classes in online, and you are watching your videos also regularly. Children, you know that in English we have completed two units of English grammar book and chapter 1 of your English textbook. I have started chapter 2 of your English textbook in my previous video. The name of the chapter is chapter 2. The name of the chapter is Try again. We have started this chapter in the previous video, and I had explained you three paragraphs of this chapter. Children, let's revise what we did in the previous video. Children, in this chapter there was a king. His name was Robert Bruce. Name of the king was Robert Bruce, and he was king of Scotland. Scotland is a country, so he was king of Scotland. King was very brave and very wise. Means brave and wise are describing words which are describing King Bruce. King Bruce was brave and wise. There was again another king, King of England. He wanted Scotland to be part of England. वो चाहता था, किंग ऑफ इंग्लैंड जो थे वो चाहते थे कि स्कॉटलैंड को इंग्लैंड का पार्ट बना लिया जाए, इंग्लैंड में मिला लिया जाए. मतलब जो किंग ऑफ इंग्लैंड थे वो स्कॉटलैंड के भी किंग बनना चाहते थे. समझ में बात? मतलब स्कॉटलैंड को हरा के स्कॉटलैंड को अपने में मिला लेंगे और फिर वहाँ का भी राजा बन जाएंगे. तो इसके लिए जो किंग ऑफ इंग्लैंड थे उन्होंने एक बड़ी सी आर्मी के साथ उन्होंने स्कॉटलैंड की तरफ पहुँचे उन पर अटैक करने के लिए, और 6 बार लड़ाई करी उन्होंने. ही अटैक्ड स्कॉटलैंड 6 times. How do we know that he attacked 6 times? Because in the 3rd paragraph it is mentioned that Robert Bruce he fought with English army 6 times. He was defeated 6 times. He fought with English army bravely मतलब बहुत बहादुरी के साथ. He fought with British army, or you can say English army, bravely, but he was defeated 6 times. वो 6 बार उनको हारना पड़ा. किसको हारना पड़ा? स्कॉटलैंड के राजा को, क्योंकि स्कॉटिश आर्मी जो थी वो छोटी थी इन कंपैरिजन टू इंग्लिश आर्मी. इंग्लिश आर्मी के कंपैरिजन में स्कॉटिश जो आर्मी थी वो कम थी, छोटी थी. तो स्कॉटिश मैंने बताया था, स्कॉटलैंड की आर्मी स्कॉटिश आर्मी, इंग्लैंड की आर्मी इंग्लिश आर्मी, इंडिया की आर्मी इंडियन आर्मी. ठीक है. अमेरिका के लोग अमेरिकन्स, चाइना के लोग चाइनीज़, जापान के लोग जापानीज़, वैसे होता है. तो स्कॉटलैंड के लोग स्कॉटिश. सो स्कॉटिश आर्मी जो थी वो in comparison to English army it was small, but king was brave and he bravely fought with English army but was defeated 6 times. 6 बार उनको हारना पड़ा. ऐसा नहीं कि वो कावर्ड थे, डरपोक थे और इसलिए हार गए, क्योंकि आर्मी बड़ी थी, बहुत ज़्यादा लोग थे इंग्लिश आर्मी में. इट वॉज अ लार्ज आर्मी. इंग्लिश आर्मी वॉज लार्ज आर्मी. So finally Robert Bruce he ran into the forest to save his life. अपनी जान बचाने के लिए रॉबर्ट ब्रूस को जंगल में भाग जाना पड़ा, और जंगल में भागकर वो एक केव में जाकर छुप गए. रॉबर्ट ब्रूस एक केव में जाकर छुप गए अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि अगर सिर्फ जंगल में जाते तो इंग्लिश आर्मी वहाँ भी आ जाती. तो वो एक गुफा में जाकर, एक केव में जाकर वो छुप गए. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में. अब हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो, और आज हम करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ. यू कैन ओपन योर बुक, यू कैन रीड आफ्टर मी. आप मेरे पीछे पीछे रीडिंग कर सकते हो. मैं वर्ड बाय वर्ड एक एक वर्ड पढ़ूंगी, एक एक सेंटेंस पढ़ूंगी, और आप मेरे साथ उसको
रिपीट कर सकते हो. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 18. आई एम गोइंग टू राइट दैट पैराग्राफ सो दैट it will be easy for you to know that which word I am pronouncing and how I am pronouncing it. Okay. K-I-N-G, king. B-R-U-C-E, Bruce. Was. T-I-R-E-D, tired. And S-I-C-K, sick of. F-I-G-H-T-I-N-G, sick of fighting. He had given up all. H-O-P-E-S, sorry, hope. He, T-H-O-U-G-H-T, thought. T-H-E-R-A, there. I-S is. N-O, no. Use. T-R-Y-I-N-G, trying. A-N-Y-N-E, M-O-R-E, more. Okay. King Bruce was tired and sick of fighting. He had given up all hope. He thought there is no use trying anymore. Now what happened? वो केव में जाकर तो छुप गए. उसके बाद क्या किया? किंग ब्रूस वॉज टायर्ड एंड सिक. एक तो इतनी बार वॉर किया, इतनी बार बैटल लड़े थे वो, 6 टाइम्स वो उन्होंने वॉर लड़ा था. वो बैटल बोलते हैं जिसको युद्ध बोलते हैं. तो 6 टाइम ही फॉट बैटल विद किंग ऑफ इंग्लैंड. सो ही वॉज वेरी टायर्ड मतलब किसी चीज़ में बहुत थक जाना, लड़ते लड़ते थक जाना, क्योंकि उन्होंने बहुत ब्रेवली सामना किया. ही फॉट ब्रेवली एंड सिंस ही वॉज डिफीटेड ही फेल्ट वेरी टायर्ड. अगर आदमी सक्सेसफुल होता है ना तो उसको अपनी थकान महसूस नहीं होती, कितना भी काम कर लो, लेकिन फाइनली जब हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो हम सारी थकान अपनी भूल जाते हैं, है ना, खुशी में. लेकिन यहाँ क्या था? यहाँ तो राजा डिफीटेड थे. ही वॉज डिफीटेड 6 टाइम्स. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 6 टाइम्स वो हार चुके थे. तो वो मन से भी थक गए थे और फिजिकली भी थक गए थे. मतलब ही वॉज वेरी टायर्ड, एकदम उनको थकान हो गई थी. एंड सिक ऑफ फाइटिंग. सिक ऑफ फाइटिंग मतलब बिल्कुल, अब जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल मन टूट गया था उनका. लड़ते लड़ते अब उनका पूरा मन अब खराब हो चुका था बिल्कुल. जैसे सिक नॉर्मली होता है कि तबीयत ठीक ना होना, और यहाँ पर सिक का मतलब है, सिक ऑफ फाइटिंग मतलब फेड अप विद फाइटिंग. अब उनका बिल्कुल भी मन नहीं था फाइटिंग करने का, वो बहुत थक चुके थे. एंड ही वॉज सिक ऑफ फाइटिंग, एकदम तंग आ चुकना बोलते हैं ना, फाइटिंग से वो तंग आ चुके थे, वो सिक ऑफ फाइटिंग. तो King Bruce was tired and sick of fighting. He had given up all hope. एक होता है ना, hope क्या होता है कि when you think that something good will happen, that is called hope. कुछ अच्छा होगा, ये एक उम्मीद होती है, एक hope होता है, ठीक है. When you think that something positive will happen, that is called hope. Something good will happen, that is called hope. Something I will achieve, that is hope. लेकिन he has given up all hope. वो सारी उम्मीद छोड़ चुके थे. He had lost all hopes. उनको बिल्कुल भी अब उम्मीद नहीं थी. और किस चीज़ की होप नहीं थी? कि अब कुछ अच्छा होगा, अब वो अपनी कंट्री को बचा पाएंगे. ये होप उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था. He had given up. गिवन अप मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है. To give up
मतलब टू लीव, गिव अप का मतलब छोड़ देना, टू लीव. सो ही हैज़ गिवन अप द होप. उन्होंने सारी पॉजिटिव जो उनके थॉट्स थे वो सब उनके अब उन्होंने छोड़ दिया था. क्या पॉजिटिव थॉट कि मैं मतलब कभी इंग्लिश आर्मी से जीत पाऊंगा, मैं अपने कंट्री को बचा पाऊंगा, ये अब ये उनकी होप नहीं बची थी. ही हैड गिवन अप, ही हैज़ लेफ्ट दिस फीलिंग कि अब वो कभी जीत पाएंगे. और उन्होंने क्या सोचा, ही थॉट. अब आप देखोगे ना यहाँ पे ऐसे डॉट्स बना के ऐसे लिखा है, तो जब ऐसा कोई सेंटेंस लिखा होता है इसका मतलब है कि वो पर्सन क्या सोच रहा है या रही है वो हम उनके ही भाषा में बता रहे हैं. वो क्या सोच रहे हैं, देयर इज़ नो यूज ट्राइंग एनी मोर. वो क्या सोच रहे हैं कि अब कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है. देयर इज़ नो यूज ट्राइंग एनी मोर. ट्राइंग एनी मोर मतलब अब और मतलब और ज़्यादा प्रयास करने से, कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. देयर इज़ नो यूज़ ट्राइंग एनी मोर. ठीक है, अब कोई फ़ायदा नहीं है कोशिश करने से. ऑलरेडी मैं इतनी बार फाइटिंग कर चुका हूँ, इतनी बार फाइटिंग मतलब आई हैड फॉट द बैटल, और हर बार मैं हार जा रहा हूँ, तो अब देयर इज़ नो यूज़, अब कोई फ़ायदा नहीं है और कोशिश करने से. ठीक है, उनके मन में ये फीलिंग आया, उन्होंने ये सोचा कि अब कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है. दिस इज़ वॉट ही थॉट, देयर इज़ नो यूज़ ट्राइंग एनी मोर. अब और मैं कुछ प्रयास नहीं करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ये उन्होंने मन में सोचा. दिस सेंटेंस टेल्स दैट ही हैड लॉस्ट ऑल द होप्स. ये सेंटेंस से पता चल रहा है कि उनको अब कोई होप बची नहीं थी, उनके मन में कोई पॉजिटिव फीलिंग नहीं थी सक्सेसफुल होने की. उनको कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि अब वो कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि उनके मन में ये फीलिंग आ रहा था कि अब कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं. ऑलरेडी मैं 6 टाइम्स हार चुका हूँ, और नाउ आई एम टायर्ड, नाउ आई एम सिक ऑफ दिस फाइटिंग. ठीक है, ये सारे थॉट्स उनके मन में चल रहे थे कि अब मैं कोशिश नहीं करूँगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. किंग ब्रूस वॉज टायर्ड एंड सिक ऑफ फाइटिंग. ही हैड गिवन अप ऑल होप. ही थॉट देयर इज़ नो यूज़ ट्राइंग एनी मोर. Next paragraph. As he, lay, lay, thinking, thinking, he saw a spider. It was trying, trying to reach the roof of the cave. It failed, again, and ओके, पहले इतना देख लेते हैं, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ. एज ही ले थिंकिंग, पढ़ते हैं, एज he, lay, ले, thinking, thinking, he saw a spider, spider, spider. It was trying to reach the roof of the cave. It failed again and again. अब
वो जब ऐसे लेटे लेटे अपने जो जिस केव में वो छुपे हुए थे किंग ब्रूस, तो वहाँ लेटे लेटे ही वॉज थिंकिंग, यही सब सोच रहे थे कि अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, देयर इज़ नो यूज़ ट्राइंग एनी मोर, नाउ नथिंग विल हैपन, ऐसा नेगेटिव थाट्स जिसको बोलते हैं ना, जिसमें कि कोई होप नहीं होती, कोई उम्मीद नहीं होती, ऐसे थाट्स उनके माइंड में चल रहा था। ऐसा वो लेटे लेटे केव में लेटे लेटे वो सोच रहे थे। फिर क्या हुआ, ही सॉ अ स्पाइडर। अब वहाँ पर उन्होंने, केव में तो इंसेक्ट्स भी होते हैं ना, क्योंकि केव तो जंगल में था, तो वहाँ तो कई तरह के इंसेक्ट्स होंगे, है ना। और आपने देखा होगा स्पाइडर तो जनरली ऐसे ही जगह पे होते हैं जहाँ जो चीज़, अगर कोई रूम बहुत दिनों से बंद है या कोई ऐसी जगह ना जहाँ पे सफाई नहीं हो रही है कई दिनों से, तो वहाँ पर ऐसी जगह पे स्पाइडर्स आ जाते हैं। तो क्योंकि वो केव था, वहाँ कौन साफ़ सफाई करेगा, है ना, तो वहाँ पर एक जनरली गंदी जगह पे ही इंसेक्ट्स आ जाते हैं। तो वहाँ पर एक स्पाइडर उन्होंने देखा, किंग ने एक स्पाइडर को देखा। अब वो स्पाइडर क्या कर रहा था, इट वॉज ट्राइंग टू रीच द रूफ ऑफ द केव। चिल्ड्रन, रूफ किसको बोलते हैं, छत जो होता है ना, जैसे अभी ये रूम है और इसके ऊपर वो क्या है, रूफ है, जिसको जैसे घर का होता है ना, नॉर्मली फैन हमारा कहाँ लगा, सीलिंग पे लगा होता है, बट सीलिंग जो है ना उसके जो कवरिंग है दैट इज़ कॉल्ड रूफ। तो छत जिसको हम बोलते हैं, तो वो जो स्पाइडर था वो उस केव के रूफ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वॉल से, केव की वॉल पे चढ़ते चढ़ते वो रूफ पर जाने की कोशिश कर रहा था। रूफ पे चढ़ के हो सकता है बाहर निकल जाता, क्योंकि गुफा तो ऐसे अंदर होती है ना, केव तो जनरली ऐसे डाउनवर्ड में होती है। तो वो चढ़ के ना ऊपर जाना चाह रहा था, रूफ पर जाना चाह रहा था। इट वॉज ट्राइंग टू रीच द रूफ ऑफ द केव। वो जो स्पाइडर है वो केव के रूफ पर जाने की कोशिश कर रहा था। ट्राई करना मतलब कोशिश करना। इट फेल्ड अगेन एंड अगेन, मतलब पर वो चढ़ नहीं पा रहा था। फेल्ड मतलब एग्ज़ाम वाला फेल, पास नहीं, फेल होना मतलब वो जो वो ट्राई कर रहा था उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। वो बार बार कोशिश तो कर रहा था। इट फेल्ड अगेन एंड अगेन मतलब बार बार वो अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। मतलब वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था और फिर वो गिर जा रहा था, थोड़ा चढ़ रहा था फिर वो गिर जा रहा था। इट वॉज ट्राइंग बट इट फेल्ड अगेन एंड अगेन। नाउ आई विल राइट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, फिर लिखते हैं। आपने स्पाइडर देखा है? हैव यू सीन स्पाइडर? देखा है ना? कभी कभी बहुत स्केरी लगता है, मोटा सा होता है, पर यहाँ तो वो स्पाइडर जो है वो डरने वाली चीज़ नहीं, किंग उससे डर नहीं रहे बल्कि उसको वॉच कर रहे हैं कि वो कैसे चढ़ रहा है और फिर वो फेल हो रहा है, मतलब बार बार गिर रहा है। आगे पढ़ते हैं। PUT बट AACH each time it FELL fell, it WOULD would, TRY try, AGAIN it, DID did not give up. At last it, REACHED, reached the ROOF, roof of the, चलिए इसको देख लेते हैं। But each time it fell, it would try again. It
did not give up. At last, it reached the roof of the cave. Now I have underlined few words. पहला तो मैंने किया है would. ये इसलिए किया है to tell you the pronunciation. इसका pronunciation बताने के लिए. अब स्पेलिंग देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है. WOULD would लिखा हुआ है ना. WOULD लिखा है यहाँ. तो आपको क्या लग रहा है कि ये would WOULD, क्योंकि L का साउंड तो L होता ही है. would वुल्ड, लेकिन ये नहीं है. इसका प्रोनाउंसिएशन वुल्ड नहीं है. इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? वुड है. क्या है? वुड. वुड. एल जो है वो इसमें साइलेंट है. आपको मैंने बताया था ना साइलेंट का मतलब. साइलेंट क्या होता है? स्पेलिंग में वो लेटर रहता है, वर्ड की स्पेलिंग में वो लेटर रहेगा, लेकिन जब हम उस वर्ड को बोलेंगे, जब हम उस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो उस लेटर का साउंड नहीं आएगा. मतलब इट विल बी देयर इन द स्पेलिंग, दैट लेटर विल बी देयर इन द स्पेलिंग. जैसे कि यहाँ पे एल है, स्पेलिंग में तो है पर उसका साउंड नहीं है. ये एल स्पेलिंग में रहेगा पर उसका साउंड नहीं रहेगा. ठीक है. वुड, इसका प्रोनाउंसिएशन है वुड. तो बट ईच टाइम इट फेल इट वुड ट्राई अगेन. मतलब वो जितनी बार वो गिरता था वो फिर से ट्राई करता था. वो जो स्पाइडर था क्रॉल करके उस रूफ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था और नीचे गिर जाता था, पर वो जब भी गिरता था वो फिर से कोशिश करता था चढ़ने की. ठीक है. मतलब वो बार बार गिर रहा था और बार बार चढ़ने की वो कोशिश करता था. ऐसा नहीं कि गिर गए तो चलो अब नहीं. जितनी बार वो क्रॉल कर रहा था वो गिर रहा था. इट फेल इट वुड ट्राई अगेन. वो कोशिश फिर से करता था. इट डिड नॉट गिव अप. गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना. कैसा भी मतलब अब मेरे से नहीं होगा. गिव अप मतलब कोई चीज़ का मन से ये सोच लेना कि अब मेरे से नहीं होगा. आई गिव अप मतलब मेरे से नहीं होगा. ये फीलिंग होती है. गिव अप मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना कि अब हमसे नहीं होगा. गिव अप का यहाँ पे ये मतलब है. गिव मतलब देने वाला नहीं है. गिव इट टू मी, ये वाला गिव नहीं. गिव अप. गिव अप मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना कि हमसे नहीं होगा, हार मान लेना जिसको हम कहते हैं. तो वो इट डिड नॉट गिव अप, वो हार नहीं मान रहा था, उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा. इट डिड नॉट गिव अप. वो जितनी बार गिर रहा था उतनी बार वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था. इट वॉज नॉट गिविंग अप, वो हार नहीं मान रहा था. फिर क्या हुआ? एट लास्ट इट रीच्ड मतलब पहुंचना, वहाँ पर चले जाना. एट लास्ट इट रीच द रूफ ऑफ द केव. और फाइनली वो जहाँ जाना चाहता था, मतलब कि केव के रूफ में, वहाँ वो पहुँच गया. इट रीच द रूफ ऑफ द केव. वो केव के रूफ पर वो पहुँच गया. फाइनली वो पहुँच गया वहाँ पर. कहाँ पहुँच गया? रूफ ऑफ द केव, क्योंकि उसको वहीं चढ़ना था. पर उसने हार नहीं मानी तभी चढ़ा ना. अगर वो 2-3 बार गिरने के बाद सोचता अरे छोड़ो अब क्या चढ़े, बार बार मैं तो गिर जा रहा हूँ, और फिर कहीं और चला गया होता, छुप गया होता, किसी कोने में जाके बैठ गया होता, तो क्या पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था ना. वो जितनी बार गिर रहा था उतनी बार वो कोशिश कर रहा था और फिर फाइनली वो पहुंच भी गया. अपनी वो कोशिश में सक्सेसफुल रहा, अपने काम में वो सक्सेसफुल रहा. वो क्यों रहा? क्योंकि उसने गिव अप नहीं किया, क्योंकि उसने हिम्मत नहीं हारी, है ना. और ये सारी चीज़ें, ये सारी जो एक्टिविटी थी स्पाइडर की, वो कौन देख रहा था? रॉबर्ट ब्रूस जो किंग ब्रूस थे, वो ये सब देख रहे थे कि अरे ये बार बार गिर रहा है लेकिन ये बार बार चढ़ रहा है. जितनी बार गिर रहा है उतनी बार ये चढ़ रहा है. मतलब वो कोशिश करना नहीं छोड़ रहा है. इट डिड नॉट गिव अप, इट इज़ नॉट गिविंग अप. वो छोड़ नहीं रहा है हिम्मत. और फाइनली जैसे ही वो रूफ पे चढ़ा, वो सक्सेसफुल हुआ ना. फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि किंग ब्रूस वॉज सरप्राइज्ड. King, B-R-U-C-E, Bruce was, S-U-R-P-R-I-Z-E-D,
P-R-I-S-E-D, surprised. He, C-R-I-E-D, cried. Wow. If a L-I-T-T-L-A, little, S-P-I-D-E-R, spider, does not give up, does not give up, I too can try. I will, F-I-G-H-T, fight the war, A-G-A-I-N, and I will win. ओके, अब इसको देखते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. किंग ब्रूस वॉज सरप्राइज्ड. ही क्राइड, वाओ. इसको जरा ठीक से बनाते हैं. इफ अ लिटिल स्पाइडर डज नॉट गिव अप, I too can try. I will fight the war again and I will win. Okay? King Bruce was surprised. He cried, wow! If a little spider does not give up, I too can try. I will fight the war again and I will win. अब इस पैराग्राफ में जो किंग ब्रूस हैं उनके बारे में बताया कि ही वॉज सरप्राइज्ड. किंग ब्रूस वॉज सरप्राइज मतलब किसी चीज़ को देख के हम जब बहुत शॉक्ड रह जाते हैं, जैसे आप कोई चीज़ हमने एक्सपेक्ट नहीं की हो और वो चीज़ हो जाए, तो हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं दैट इज़ कॉल्ड सरप्राइज. कोई भी, इट कैन बी गुड थिंग, इट कैन बी बैड थिंग. सरप्राइजिंग में दोनों चीज़ें आती हैं. तो जब कुछ ऐसा होता है जो हमने एक्सपेक्ट ना किया हो या जो हमने ना सोचा हो और वैसा कुछ हो जाए तो वी ऑल फील सरप्राइज्ड. तो द किंग वॉज सरप्राइज्ड क्योंकि वो तो तब से स्पाइडर को वॉच कर रहे थे कि अरे ये बार बार कोशिश कर रहा है, गिर रहा है. और जब वो जैसे ही वो रूफ पे पहुंच गया, ही वॉज सरप्राइज्ड. ठीक है. और जब हम लोग शॉक्ड होते हैं, जब हम सरप्राइज्ड होते हैं तो क्या होते हैं, हमारा एक एक्सप्रेशन आता है. तो ऐसा ही जो किंग ब्रूस हैं, ही क्राइड. यहाँ पे क्राइड मतलब रोना नहीं है. क्राई का मतलब होता है जोर से बोलना. ठीक है. क्राइड मतलब जोर से चिल्लाकर बोलना. उन्होंने चिल्ला के क्या बोला, वाव. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना एक्सक्लेमेशन मार्क. आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था ना, जहाँ पर भी ये लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क. ये हम अपना कोई सडन रिएक्शन जब हमें शो करना है या कोई भी सडन रिएक्शन जब शो किया जाता है तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया जाता है. अब यहाँ पे सडन रिएक्शन था ना, वाव. ये एक सडन रिएक्शन है, वाव ऐसे बोलते हैं ना, तो ये वही वाला सडन रिएक्शन है, इसीलिए यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क है. वाव. इफ अ लिटिल स्पाइडर डज नॉट गिव अप, एक छोटी सी मकड़ी या छोटा सा मकड़ा, उसने हार नहीं मानी, उसने गिव अप नहीं किया, उसने हिम्मत नहीं हारी. आई टू कैन ट्राई, मैं भी कोशिश कर सकता हूँ. समझ में आया बात. एक छोटा सा इंसेक्ट, एक छोटी सी मकड़ी, वो हिम्मत नहीं हार रही है, उसने कोशिश नहीं छोड़ी, तो मैं भी तो कोशिश कर सकता हूँ. ये उनको फीलिंग आया कि एक मकड़ी इतनी बार गिरी लेकिन उससे हिम्मत नहीं आ रही, तो मैं क्यों नहीं ट्राई कर सकता, मैं भी ट्राई कर सकता हूँ. ठीक है. आई विल फाइट द वॉर अगेन, मैं फिर से लड़ूंगा वॉर, मैं फिर से युद्ध लड़ूंगा, दोबारा से लड़ूंगा. एंड आई विल विन, और मैं जीतूंगा. ये पॉजिटिव फीलिंग आई उनको, जैसे कि वो स्पाइडर जीता. स्पाइडर वॉर नहीं लड़ रहा था, पर उसका ये वॉर
स्पाइडर का क्या टास्क था, उसको ऊपर जाना था, ये उसकी अपनी लड़ाई थी, उसको ऊपर रूफ तक जाना था और उसने हिम्मत नहीं हारी। तो जैसे स्पाइडर जीता अपने पर्सनल वॉर में, वैसे ही ब्रूस ने क्या सोचा कि अगर एक छोटी सी मकड़ी हार नहीं मानती है तो मैं क्यों हार मानूं, मैं भी ट्राई करूंगा और मैं फिर से युद्ध लड़ूंगा, मैं फिर से वॉर लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। आई विल विन, विन मतलब जीतना, आई विल विन, मैं जीतूंगा। ये हुआ पॉजिटिव फीलिंग। ये क्यों आई ब्रूस में, उस स्पाइडर से इंस्पिरेशन लेके, उस स्पाइडर से मोटिवेट हुए, है ना, उस स्पाइडर को देख के ये पॉजिटिविटी आई कि एक छोटा सा कीड़ा नहीं हार मानेगा और मैं हार मान लूँ, इतना बड़ा किंग मैं हार मानूँ। ये उनके में अच्छा एक पॉजिटिव आया। तो ये उन्होंने ये स्पाइडर से एक लेसन सीखा, है ना, और ये सबक हम सब सीख सकते हैं ज़िंदगी में, हार नहीं मानने का। तो ये अब इसके बाद क्या हुआ फिर, अब इसके बाद जो हुआ वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, है ना, कि किंग ब्रूस में अब पॉजिटिव फीलिंग आई। जो ब्रूस हिम्मत हार चुके थे, जो ब्रूस सारी उम्मीद छोड़ चुके थे, सारा होप छोड़ चुके थे, फाइनली ही गॉट अ होप, उनको एक उम्मीद जगी, ही गॉट ए पॉजिटिव फीलिंग। अब आगे क्या हुआ ये हम जानेंगे अगले वीडियो में, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में and we will continue that chapter in the next video. Okay, thank you.